करगोरी भाजी राधे पड़री मोर भाटाओ करगोरी भाजी राधे पड़री मोर भाटाओ सौरेंगी घी वाला कड़काए बोदेला डीरा बघवा रेंगा लई धीरे धीरे. A Goan tribal artist imagined the gates of a museum as being guarded by a lion day and night, held in place by elephants and decorated by deer. To him, the gate symbolizes what the museum holds within and what it keeps out. The Goans are a tribe from the central Indian state of Madhya Pradesh. Bhopal, its capital, is home to the Museum of Mankind. The sprawling museum showcases art and craft from an astonishing variety of folk and tribal traditions in India. These are community traditions whose creativity draws on centuries of shared culture and aesthetics. Ironically, most of these communities have historically been considered uncultured, particularly tribals known as Adivasis or the original inhabitants of India. The museum facilitated an unusual encounter when it invited Tara Books, a visual arts publisher working with community art, to conduct a 5-day workshop with 50 folk and tribal artists from all over India, each with their own skills, creativity, and unique worldview. Tara's idea for the workshop was to enable artists to think about and express their thoughts on the museum and their own cultural heritage. If there is a common root to the practice of community art, it would probably be the art of tattooing. Most traditions think of tattoos as permanent marks that accompany a person into death. Although tattoo artists belong to the poorest and most marginalized communities, they are boundless repositories of folk knowledge. They are nomadic, wandering from village to village to make a meager living. येला ना फूल झाड़ ना जैसे शादी नहीं हो रहे थे तो ये मंदिर झाड़ देख ये हवे सतनामी गोदना ये है करेला झाड़ ये है लवांग झाड़ ये है छन्नी के हथौड़ी के और ये अर्थ बनाए दो जैसे ये राम लक्ष्मण टुलरी को दाते दाई दोनों बेट होते तो बिहार का दोनों बेट होते टुलरी के ते अटका चूरा पहिरे बेटी इतना ते सोना चांदी पहिरे ते संग में चाहिए इतना दाई से तेरे ते नहीं चाह अभी दाई के गोदना चाहे बेटी ला गोदा. Tattoo artists are often also singers, performers, and fortune tellers. Holding a customer's attention by singing is an ideal way for the artist to distract the client from the pain of tattooing. तो राम की गाता है अहो रामा डर दिया मन लगा साधु की गल मई डर दिया मन अहो रामा डर दिया मन लगा साधु की गल मई डर दिया मन कौन धरे मोर डंडक मुंडा कौन धरे मृग छाला कौन धरे मोर डंडक मुंडा कौन धरे मृग छाला राम धरे मोर बस बसुरिया राम धरे मोर बस बसुरी छीत धरे जय मन लगा साधु की गल में डर दियो माला अहो रामा डर दियो माल लगा साधु की गल में डर दियो माला. ये पहले गोदना ये जो हम लोग जिस टाइप में बनाते हैं तो ये पहले शरीर के ऊपर है तो उन्होंने ही ये दीवार में या ऐसे ऐसे कहीं कहीं बनाना अपने जैसे पूजा करते हैं तो नीचे में नीप के बनाते हैं वो चावल को पीस के ऐसे 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 बना देते हैं. हमारे घर में मेरी मम्मी बनाती है बहन बनाते हैं तो देखते देखते हमको इसमें दिलचस्पी है. Decorative patterns are a way of remembering and passing on elements of style. They form the basic syntax of a visual grammar that has led to incredibly complex works of art. The museum can be a place to store, safekeep, and remember aspects of culture that are forgotten or left behind as life changes. ये खेत के मोड़ में जहाँ अपना खेत रहता ये परेशान करते हैं अपन को बुजुर्ग आदमी मर जाता इसके नाम का अपन वो गाटला बोलते हैं गाटला पत्थर का बना के डालते हैं अपन भी ये घोड़ा बना के गाटला बनाया. इतना खुशी हो रहा है कि कहाँ से सब लोग आ रहे मिल रहे नहीं तो कौन पहचानता आज तक केरला तक पहुँचे तो इतने लोगों को देखे. In addition to preserving shared motifs, artists are just as excited by the possibility of depicting new subjects. Sometimes this takes the form of adding quirky everyday images to traditional and sacred narratives. ये पूजा करने को आ रहे हैं. ये साल में चढ़ता है. हाँ साल में चढ़ाते हैं मुर्गा. ये अगरबत्ती जल रही है ये नारियल
चढ़ाया। यहाँ उनको पूजा करने के लिए धूपन की वो धूप कर रहे हैं। ये झंडा लगाया, झंडे के ऊपर ये कौवे हवे उड़ के जा रहे तो बैठ गए झंडे के ऊपर। ये दीवार इधर दरवाजा। In Varli art, the coming together of the everyday and the sacred is intrinsic to the form. They interact continuously to create a dynamic cosmos. भवन बोलते हैं उसको, वो जो अंदर से सिटी करती है ना, वो दिखा है। इधर पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा करते हैं। वो मतलब नाग पंचमी के इधर बैठे हैं सब, वहाँ पे सब घर का दिखा है। खेती लगाई है, कुछ लेके जा रहे हैं सर पे, वो हल चला रहा है, मतलब सब गांव का ऐसा दिखाया है। The Pithoras lead a comparatively isolated existence in remote regions. Their old ways of life are more intact, and their art and its traditional functions and qualities haven't changed too much. पहला पिताजी के सीखिया, पिता की करता होता, तीनों देखे देखे बोलता है बेटा और तू सीखो, मेरे की उम्र जात रही अभी और तू सीखो। पिताजी को पिताजी सीखता जा, ऐती लड़का के हम सीखे कहीं खेती कर दे बोलते मजदूरी, कोई से तो कड़िया काम करे, कोई से तो नाले कहीं गमे से पालो बांधे। ये पिठोरो पिठोरी ये सब आप कहना ये बताना गरु केवाये, ये पहला जो है इसको पूजा करेगी ना, इसको अलग पूजा करता है। आप बकरी तो ये है, आप भैंस है, तो ये नाच करता करता है, ढोल भी जा पाती है, आँख है तो गाय है, ये नाच वाला है, पावल गाता है। The Pithoras don't shy away from modernity or from expanding their repertoire as artists. They are keen to experiment with new themes and surfaces. New paintings often provide them additional sources of income. Through all this, they remain clear about the distinction between the sacred and the commercial. अभी है क्या आता है, लोग को क्या पुराने ऐसा नहीं, अभी क्या है कि गाड़ी तो गाड़ी में बैठा हो तो गाड़ी के हम नहीं पाड़ता, गाड़ी चालू कर दिया। क्योंकि हम तो जंगल के किनारे रहने वाले, हमारे आसपास में प्रकृति का इतना सुंदर रूप था, तो वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में बसी हुई थी, तो उन चीज़ों को ही हम दर्शाते थे, ना कि और कुछ, क्योंकि हमने कभी गाड़ी नहीं देखी थी। अब जब हम शहर में आए तो हमने यहाँ और कुछ देखा, बिल्डिंगें देखी, उनके अंदर बहुत कुछ देखा, टीवी और वीडियोस, सारे कुछ साधन हमने जब देखे तो लगा कि नहीं, ये शायद इसके अंदर भी हम इसको बना सकते हैं, तो उसके साथ साथ सोच बदला। पहले दीवारों में होता था, अब कैनवासों में हो रहा है, सीट में हो रहा है, एक्रिलिक सिंथेटिक कलर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारा मार्केटिंग का बहुत असर है उसमें, क्योंकि मार्केट में जब कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उसकी मतलब वैल्यू आकी जाती है कि हाँ ये किस स्टैंडर्ड में है। The artistic medium of the Bengal Patuas are their scrolls. The Patuas are traveling bards and storytellers who illustrate their narrative songs with the scrolls they paint. These scrolls are composed of sequential images, like a comic book or graphic novel. The Patua form is happily open-ended. Artists often pick up on news and events and give them the timeless quality of fables or myths. पहले ज़माने में तो इंसान कम था ना, तो राक्षस ज़्यादा था, तो हमने सोचा है तो राक्षस तो सबको खाते हैं, वो तो सही है, मगर राक्षसी भी तो खाते हैं, तो इसीलिए राक्षसी भी उसको भी बना दिया। इस हमारा जो मार्केट है वो लोग बहुत प्यारा है, वो लोग सब कुछ उधार दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जब कमा के लेके जाते हैं वो लोग को दे देते हैं। पहले मेरा पटुआ का गाना था, वो फिल्म का तेरे दिखाते दिखाते फिर गुटाते, फिर दिखाते फिर गुटाते, उसके बाद 22 को आया है, उसके बाद वो लड़का लोग औरत साज के वो नाटक करता था, उसके बाद यात्रा आए, उसके बाद टीवी आ गया घर घर, जब जाके बोलता मासी आओ ना गाना सुनाएंगे, बोला नहीं आज तो मिठुन का अच्छा फिल्म है। उसके बाद फिर वही टीवी में हम लोग का इंटरव्यू लेके टीवी में ही हम लोग को फिर चढ़ा दिया ऊपर।
সরকার থেকে এলো চলে সেনাবাহিনীর দল খিচ্ছে ফটকে তুলছে ওরা দিয়ে মনের বল কতই মানুষ হলো নিঃসম্বল বলা গেল না অভিশপ্ত সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ। Gond art, like other community art practices, has its origins in decorative patterns and shared narratives. Over the last few decades, it has developed into a highly evolved aesthetic, replete with metaphors and allusions. The Gond artists at the workshop enjoyed reflecting on the museum as an institution and how it relates to their heritage. मानव संग्रहालय में सबसे पहले यहाँ विकास हो रहे थे तो सबसे पहले लोहार जनजाति भी यहाँ स्थापित हुई। ये लोहार जनजाति जो है अभी तक लोहा के काम कर रहे हैं, करते करते थोड़ा देर के लिए लेट गए, सो गया और ये काम कर ही रहे हैं। तो ये सपना में देखता है कि साजा की पेड़ के नीचे हमारे आदिवासी आदि दादन के पुरखन की खजाना है। चीज को ये जो है पायल है, ये पैसा है, ये हवाल है, ये कान की बाला है, सारी चीज़ों को जो है उस बर्तन में रख के जो रखते थे ना उसको रखें। तो इसको आज संग्रहालय जो है सारी चीज़ को कलेक्शन करके कहाँ संग्रहालय में रखें। तो हमारी कहना मेरा सोच है कि हमारी ये सारी चीज़ देवी देवताओं की जो चीज़ है उसको हम साजा के नीचे पेड़ के नीचे ही दर्शाएं ताकि सब लोग देखें। तो मैं मानव संग्रहालय को एक मोर की नज़र से देखता हूँ। तो मोर जैसे नाचता है तो हमें कितना खूबसूरत लगता है, वैसे यहाँ पर रखी हुई चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। तो मोर जब बहुत खुश होकर नाचता है तो यहाँ पर उन लोगों को मैंने दिखा दिया है जो लोग खुश होकर देखते हैं इन चीज़ों को। तो मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए मैंने यहाँ की चीज़ें भी एक राष्ट्र की संपत्ति। और गांव में खेती होती है, एक खेत है, खेत में बहुत अच्छी फसल उगी होता है तो बहुत सारी चिड़िया आती हैं, बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा होता है, कल्चर रहता है मतलब वहाँ पे। और चूहा रहता है जो बिल बना के जमीन में मतलब ग्राउंडली जुड़ा होता है, मतलब कल्चर से जुड़ा होता है। तो माउस की एक आदत बहुत अच्छी है कि वो कुछ भी चीज को जो भी चीजें से उसको लगता है तो अपने होल में इकट्ठे करते। तो मैंने उस पेंटिंग में यही बताया है कि जितनी भी कल्चरल चीजें हैं वो चूहे की तरह उसको इकट्ठे होल में इकट्ठे की, जहाँ से कुछ चीजें जो गिरी हुई है उसको एक बिल्डिंग में ला के रख दिए यहाँ। लेकिन वो जीवन वो जो बसा था वो उसको लाना है, वो कल्चर को एक लाइव करना है। The astonishing rise of Gond art is often traced to the legendary Jangar Singh Sham, who came to Bhopal from his village in the 1970s, eventually becoming a major artist. Other Gonds followed, and today there's a new generation of artists that has grown up in the city. ये जो लड़की है ये एक गांव की लड़की है और ये जो मैंने बनाया है ये एक टोकनी का वो बनाया। तो ये गांव की लड़कियां अक्सर टोकनी में हर कुछ मतलब कुछ भी चीज़ लाएंगे तो ये टोकनी से लाएंगे। वहाँ के गांव के संस्कृति को लेकर के आ रही है। ये लड़की यहाँ आकर के एक बहू के रूप में हो जाती है। मतलब ये वहाँ के जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो म्यूजियम में दिखा रहे हैं वो चीज़ बहू है, पर उस संस्कृति को लेके आ रहे हैं जो मानव संग्रहालय से जिनकी संबंध बना हुआ है, जो जुड़ चुके हैं, उन लोगों का यह सोचना है कि अब ये संस्कार और ये परंपरा तो गांव में अब खत्म होने जा रहा है, तो क्यों ना मानव संग्रहालय के उस म्यूजियम में ले जाकर रखा जाए ताकि ये परंपरा बचा रहे या वहाँ संभाल के रखें। जो आर्टिस्ट अभी वहाँ पैदा हुए थे और बचपन से वहाँ देखते आ रहे हैं वो आर्टिस्ट यहाँ पर बना रहे हैं वो चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से उन चीज़ों को जब जाकर देखते हैं तो एक अलग चीज़ आती है। जैसे अभी गांव की परंपरा को लेकर हमने कुछ शहरों की बात ले ली या फिर म्यूज़ियम की बात ले ली या फिर वहाँ से उठकर कोई चीज़ यहाँ पर सेट हो रही है और यहाँ की बात उठकर वहाँ पर सेट हो रही है, तो ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन में जो काम होता है उसमें मज़ा आता है। तो हमको तो यहाँ काम देते हैं, हमारे लिए अच्छा है, पैसा मिलता है, काम भी करते हैं, सब चीज़ चलती है। लोग देखते भी हैं। यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा नाम है यहाँ, लेकिन वहाँ जो अगर होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। जब ऐसी कुछ शहर की बात आती है या कुछ उत्पत्ति की बात आती है, शहर को डेवलपमेंट की बात आती है, तो हमेशा
हम ही जैसे लोग जो है ना उसमें प्रॉब्लम में आते हैं, छोटे ही लोग। और हमारे गांव के किनारे से नर्मदा बहती है 1 किलोमीटर के। हाँ 1 किलोमीटर है। तो इससे हमारा बहुत आस्था है और हमारे पूर्वजों से और सबसे और एक पवित्र नदी समझते हैं। और एक कल्चर भी जुड़ा, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। पुस्तकों में या ग्रंथों में जो चीज नहीं है उस चीज के ऊपर था हम उसका शोध तो एक शोध था। तो हम आदि जैसे हमारा कल्चर उससे जुड़ा हुआ है, तो हम कोई पुस्तक पढ़ के या फिर कहीं से कहानी सुन के ऐसे नहीं, हमारे बीच में क्या चीज है। बांध तो कई जगह बन चुके हैं नर्मदा जी में। एक बांध अभी और चर्चा हो रही थी हमारे गांव के आसपास कुछ बांध बनाने की। तो सब हमारे गांव के जो जितने आसपास की नर्मदा नदी के आसपास हैं, पूरी गांव के लोगों में एक खलबली जैसा मच गया था, हाहाकार जैसा मच गया था, कब क्या होगा, कहाँ जाएंगे। हम लोगों की सोचना ये है कि ये बांध पत्थर और ईंट सीमेंट ये इससे नहीं बन रही है। हमारी वो संस्कार से, हमारी वो मन में जो सोच है मैया के प्रति जो पवित्रता है, वो सब टूट फूट के बिखर रहे हैं और उसी से बांध बन रही है। जैसे मैंने दिखाया है, यहाँ पर हमारे जो गाय भैंस बैल हैं, जो जितने भी घर हैं, ये हमारी ये देवी देवताओं की जितने जगह हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं वो बांध से। यहाँ लहर से जो बिजली उत्पन्न होगी, क्योंकि बांध तो बना रहे जो भी कंपनी बना रही हो, ये गवर्नमेंट बना रही, जो भी बना रही होगी, वो तो फायदे के लिए बना रहे हो। यही सोच होगा कि मछली पालन होगी या फिर बिजली उत्पन्न होगी। तो उस लहर से एक अत्याचारी पैदा होगा, क्योंकि पवित्रता तो खत्म हो रही है। मैया को तो हम जानेंगे नहीं, नर्मदा जी को हम छोड़ देंगे, वहाँ के पानी पीना छोड़ देंगे, पूजा करना छोड़ देंगे, तो वह लहर से बिजली पैदा होगी और वह बिजली जो पैदा होगी वो अत्याचारी का एक रूप लेगा। नदियों को बांधने से ठीक है, पानी के साधन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप पानी के साधन को बढ़ाने के अलावा क्यों ना वृक्ष लगाएं, तो उससे शायद वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो पानी को सोखेगा, पानी को अपने तरीके से वाष्पित करेगा और अपने तरीके से ही उसको आसमान में ले जाएगा। अगर आप बांध बनाते हैं तो कितने सारे पेड़ पौधे उस पानी के हमेशा बने रहने से मर जाएंगे। आसपास का वातावरण जहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। जो ज़मीन है जिसमें वो फसल उगा रहे हैं, जिसमें वो रह रहे हैं, वो लोग भी वहाँ से विस्थापित होकर के अपने अन्यत्र जगह में जाकर के एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे पूर्वज ना जाने कितने वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, हम उन पूर्वजों के साथ वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया है, वहाँ खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हैं। उस जगह से अगर हमको हटा दिया जाए तो हम अपनी मातृभूमि से विरक्त होकर के, और शायद फिर जो आज हम अपने कैनवास और कागज़ पर उस चीज़ को उकेर रहे हैं, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े लोग जो आर्टिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं, हमारे हमारे आर्ट को एक कारीगरी और क्राफ्ट बाजार के नाम से बोलते हैं और बाजारों में बेचने वाला बोलते हैं। आर्ट नहीं, हमारा सोचना है कि हमारी चीज़ रहे वहाँ, और हमारी चीज़ को रख के हम कैसे दूसरी चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अभी हम मानव संग्रहालय के बारे में बनाए, ये अलग चीज़ था। जैसे कि ये संग्रहालय के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये एक सचमुच में एक नया अनुभव हो सकता है। क्यों ना संग्रहालय अगर पूरी दुनिया का या पूरे हिंदुस्तान का संग्रह इस संग्रहालय में है, तो इस संग्रहालय के ऊपर अगर हम सोच रख सकते हैं, तो इससे बड़ी सोच और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी गई है, जो संग्रहालय पूरी दुनिया को सोचता है, उस दुनिया को सोचने वाला हम, उसके बारे में हम सोचें। ये इस पेंटिंग में मैंने यही बनाया है कि तारा बुक्स वाले जो आए हैं वो एरोप्लेन में बैठ के आए हैं। इसको मैंने एरोप्लेन में बैठाकर जो लोग तारा पब्लिकेशन से 4 लोग आए हैं, और ये पूरा मैंने इसमें चिड़िया के अंदर ही पूरा, ये मोर है उसके अंदर ही पूरा मैंने मानव संग्रहालय बना दिया है। जो गीता मैडम है वो भट्ट सर से वर्कशॉप की बात करके ये सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करके उन्होंने वर्कशॉप करवाया है। तो इससे सारे लोग बहुत खुश हैं, और ये सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप्स आगे भी होते रहें, ताकि हमारी पेंटिंग्स भी आगे और बढ़ते रहें।